Hello, good morning, students, and welcome in the topic of square and square root for class 8. So, let us see as we are doing in every topic. First of all, we introduce the topic. So, the name of the topic is square and square root. So let us see what this square and square root is. Square actually 2 power of a number. This 2 power is called square. For example, here the 2 power is given to the number 5 in the first example. So it will be read as either 5 square or square of 5, and it does mean that 5 should be written twice, which ultimately gives the value 25. Similarly, square of here minus 3 by 2 to the power 3. So 3 power is called cube. So it is actually cube of the minus 3 by 2. So since there is power 3, so the number that is base must be multiplied by 3 times. So it is minus 3 by 2 into minus 3 by 2 into minus 3 by 2, and ultimately it is minus 27 by 8. So here two terms could we know that 2 power of any base is called square, whereas 3 power of any base is called cube. Later on we will learn more about the square and cube of finding square and cube of any given number. So later on we will see. Now first of all we introduce the second part of the topic, which is square root. So square root, it has the symbol like this, or you can write on this symbol 2. As 2 is hidden, if you don't write 2 on the symbol of root, then it is understood that 2 is there. So usually we write this without writing any number on the root. So it is understood that it is square root. Now let m is any number which is equal to n square. So when a number can be written as the square of some number, then that n whose square is, that n is called square root of m. That means, for example, 16 is a number which can be written as 4 square. So we say that 4 is the square root of 16. Similarly, you may take other example. Suppose 9 can be written as 3 square, then 3 will be called square root of 9. Similarly, more examples. 25 is equal to 5 square, then 5 is called square root of 25. It means square root is that number which when multiplied by it gives the number whose स्क्वायर रूट इज़. कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के 2 पावर में लिख पाएँ, जैसे m को हम लिख पाएँ n का स्क्वायर, तो n कहलाएगा m का स्क्वायर रूट. उसी के तहत हम लोगों ने उदाहरण लिया, जैसे 49. तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 कहलाएगा 49 का स्क्वायर रूट. क्यों 7 कहलाएगा 49 का स्क्वायर रूट?
क्योंकि स्क्वायर रूट कहते हैं उस नंबर को जिसे उसी से मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे आपने कहा 7 स्क्वायर रूट हो गया 49 का, तो 7 इसलिए स्क्वायर रूट हुआ क्योंकि 7 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो दिया हुआ नंबर 49 मिल जाए। तो इस तरह से स्क्वायर रूट उस नंबर को कहते हैं जिसे उसी से इंटू करने से वो नंबर मिल जाए जिसका वो स्क्वायर रूट है। आई थिंक इट इज़ नाउ क्लियर। अब हम लोग विचार करेंगे अभी कि स्क्वायर रूट किसी दिए हुए नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर? सो देयर आर वेरियस मेथड, बट main methods are two of the all the method among all the methods. Two are main methods, which are first by prime factorization method and second by continued division method. So these two are important methods of finding square root of a given number. And other are also there some methods, but they are not so fruitful because someone is not a easy one, while someone has a long process. It will take more time, although we will see all these methods later on. But first of all, we will discuss here the two important methods. So let us take one by one. पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका स्क्वायर रूट निकालना रहता है उस नंबर को स्क्वायर रूट के सिंबल में लिख लेते हैं। फिर उस नंबर का बगल में प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब केवल हम उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। कब तक? जब तक कि लास्ट में हमको प्राइम नंबर ना मिल जाए। जैसे हम लोगों ने उदाहरण के लिए यहाँ लिया है 144 फाइंड करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, स्क्वायर रूट के सिंबल में 144 को लिख दिया, फिर यहाँ बगल में उसका प्राइम फैक्टर निकाला। इसको सिंस 144 डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर 2 से, तो 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 2 से, और इस तरह से लास्ट में ये 3 से डिवाइड होकर 3 बच गया। चूँकि लास्ट जो बचा वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए अब और डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम ये बाहर जितने नंबर्स हैं ये इसके इस प्राइम फैक्टर कहलाए, तो इनको हम इंटू में रूट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि ये उसी के बराबर है, 144 के बराबर। आप यदि इसको इंटू कर जांच करेंगे तो आपको 144 ही मिलेगा, क्योंकि ये 144 का ही प्राइम फैक्टर्स है। अब स्टूडेंट ध्यान यहाँ देना है कि दो समान फैक्टर का एक आंसर होगा स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया, हमने अंडरलाइन किया हुआ है कि पहला 2 इंटू 2 दो 2 के लिए एक स्क्वायर रूट का आंसर 2 आ गया। और जब हम आंसर लिखेंगे जब हम आंसर लिखेंगे तब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का चिन्ह नहीं देंगे, क्योंकि अब तो आंसर निकल रहा है। ये चिन्ह तब तक रहेगा जब तक कि स्क्वायर रूट निकल नहीं आवे। तो दो प्राइम फैक्टर का एक एक आंसर में लिखेंगे। तो इस तरह से चूँकि वहाँ 4 2 है तो 2 2 आंसर होगा, फिर 2 3 है उसके लिए एक 3 आएगा, फिर इसको इंटू कर लेंगे तो ये 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो इस तरह से स्क्वायर रूट निकल आया 144 का 12। तो लास्ट स्टेप में लिख देंगे कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।
मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप निकालेंगे। करना क्या है, फिर मैं एक बार बोल दूं कि आपको जो नंबर दिया है उसे स्क्वायर रूट सिंबल में लिखें, फिर उसके रफ में बगल में प्राइम फैक्टर निकाल लें, फिर सारे फैक्टर को रूट के अंदर लिख दें और प्रत्येक 2 फैक्टर के लिए एक आंसर लिखें, और जब आंसर लिखें तो स्क्वायर रूट का चिन्ह ना दें और फिर उसे इंटू करके लिख दें कि स्क्वायर रूट कितना हुआ। सुविधा के लिए आप जांच कर सकते हैं कि मेरा सही हुआ कि नहीं। जो नंबर मिला उसको आप उसी से इंटू करके देखें कि क्वेश्चन वाला नंबर मिलता है कि नहीं। ठीक है, यदि मिल गया तो समझिए आपका आंसर सही है। आइए अब हम लोग बात करें दूसरे मेथड का, जो कहलाता है कंटिन्यूड डिवीज़न मेथड। So let me set the page first. So here कंटिन्यूड डिवीज़न मेथड, इसमें जैसा नाम है आपने वहाँ देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर जो नाम है उसका अर्थ हो रहा है कंटिन्यूड माने लगातार, डिवीज़न माने डिवाइड का काम, यानी ये वो मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का जिसमें हम लगातार डिवाइड का काम करेंगे। हम लोग क्वेश्चन लेकर बात करें, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, 2 क्वेश्चन है उसमें, एक 256 का और एक 4225 का। हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को जैसे एक एक करके देखें हम लोग। 256 लिख कर कॉलम बना लेंगे डिवाइड जैसा। उसके बाद राइट साइड से जोड़े नंबर पर, पेयर नंबर पर रैकरिंग सिंबल डालेंगे। तो स्वाभाविक है 5 6 यानी 56 पर रैकरिंग होगा और 2 अकेला बच जाएगा। यदि आपका अकेला नंबर बच गया तो उसी को पहले डिवाइड देना है। अब 2 में डिवाइड देंगे तो जिस नंबर से डिवाइड देंगे उसको हम लोग लेफ्ट में 2 बार लिखेंगे और उसका इंटू करके यहाँ लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट में 2 1 लिखा गया है क्योंकि 1 1 जा 1 होगा। 2 बार नहीं जाएगा क्योंकि 2 यदि हम 2 बार लिख के इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और हमको डिवाइड 2 को देना है तो वो संभव नहीं है, तो 1 से दिया और आंसर यहाँ लिखेंगे एक बार 1। इसके बाद 1 को 1 से इंटू करके यहाँ अंदर लिखा, फिर मैंने माइनस किया, 1 बचा और पेयर में यहाँ अंक उतरता है तो 56 को उतार लाया। तो अब सब मिल के हो गया 156, जिसको अगली बार डिवाइड देना है। इधर क्या करेंगे तो जो हम लोगों ने डिवाइड दिया 1 और 1 लिखकर उसको प्लस करके थोड़े बाएं में लिख लेंगे ताकि नया नंबर का जगह फिर बच जाए। अब आप 2 आपके पास है और नया नंबर आप देखें कि कितना से देंगे जिससे कि 156 आ जाए या उससे थोड़ा ही कम हो। तो पता चला 6 बार देने से ये पूरा कट रहा है, तो यहाँ 2 6 लिखेंगे, आंसर में 1 6 लिखेंगे, फिर इंटू करके यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 156, माइनस किया तो कट गया। अब लास्ट में इधर लेफ्ट में फिर उसको ऐड करके लिख देंगे और तब बताएंगे कि स्क्वायर रूट 256 का 16 आया। इसी तरह दूसरा सवाल हम लोग ये बनाए 4225 का। इसमें पहले कॉलम बना के लिख लिए नंबर को, अब रैकरिंग डालेंगे पेयर में। तो राइट साइड से 25 पर पहला रैकरिंग होगा, फिर 42 पर। चूँकि इस बार पेयर में हमको बच रहा है तो पहला पेयर को ही डिवाइड लगेगा, यानी 42 को डिवाइड लगेगा तो 6 से देना होगा। 6 6 जा 36 होता है। 7 से इसलिए नहीं जाएगा कि 7 7 जा 49, 2 7 लिखना पड़ेगा। जिस नंबर से आप डिवाइड देंगे उसको यहाँ 2 बार लिखना है, उसी को इंटू करना है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ 6 एक बार लिख दिए, उसके बाद 36 हुआ, माइनस करके लिखा 6 बचा, फिर पेयर में 25 को उतार लाया तो ये हो गया 625। इधर लेफ्ट में क्या करते हैं उसको जोड़ के थोड़ा बगल लिखते हैं तो 6 6 12 हो गया। अब नया नंबर 5 बार गया तो 5 को 2 बार लिखा, आंसर में 1 बार लिखा, तो इस तरह से 625 आ गया।
माइनस किया तो कट गया, इधर लेफ्ट में जोड़ कर लिख दिया 5 5 10 का 0 कैरी 1 1 और 2 3 एंड 1. नाउ वी विल राइट द फाइनल आंसर दैट अंडर रूट इज दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4225 कितना हुआ, तो 65 आंसर हो गया. इसी तरह स्टूडेंट आपकी सुविधा के लिए एक मैंने बड़ा क्वेश्चन ये लिया हुआ है कि फाइंड करें स्क्वायर रूट. आप यदि काउंट करें तो देखिए ये नंबर क्या है, 100,000 10,000 लाख 10 लाख 15,22,756. ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है इसलिए 3 अंक पर कोमा है. ये एक्चुअली है 1,522,756. आप उस नंबर को लिख लें, कॉलम बना लें, पेयर करें. पेयरिंग करने से आपको मिलेगा 1 अकेला, तो पहली दफ़ा 1 में डिवाइड दीजिए तो 2 1 से दिया, आंसर में एक 1 लिखा. फिर माइनस किया, फिर एक पेयर उतारा तो 52 आया. इधर जोड़ कर 2 लिखा, फिर नया नंबर 2 से दिया तो 44 हुआ, आंसर में एक बार लिख दिया. फिर माइनस किया, फिर अगला पेयर उतारा तो 827 हो गया. इधर जोड़कर हम लोग बगल करते गए 2 4, अब नया नंबर 33 से गया. फिर माइनस किया तो 98 बचा, फिर पेयर उतारा तो 56, यानी अब हो गया 9856. इधर जोड़कर हम लोग लिखा 246 हुआ, नया नंबर 4 से गया तो ये पूरा कट गया, आंसर में एक बार लिख दिया. फिर इसको जोड़ देना चाहिए, यहाँ मैंने जोड़ा नहीं है, आप इसको जोड़ दें 4486 242 और इस तरह से फाइनल आंसर लिख दें आप कि स्क्वायर रूट 1522756 का आंसर आया 1234. मैं समझता हूँ कि ये दोनों मेथड आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे. मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिए. ये लास्ट क्वेश्चन यदि पढ़ने में नहीं आवे तो मैं पढ़ दे रहा हूँ. ये है 1002001, लास्ट में 1 है जो कट गया है. बाकी ये सारे नंबर्स का आप क्या करेंगे, एक एक नंबर का, जैसे 225 है तो इसका पहले प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकाल लें, फिर इसका डिवाइड मेथड से निकाल लें. फिर उसी तरह 9025 का एक बार प्राइम फैक्टर से निकाल लें, फिर उसी नंबर का कंटिन्यूड डिवीज़न मेथड से निकालें. इससे क्या होगा कि आपका आंसर भी वेरीफाई होता जाएगा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर आता है किसी क्वेश्चन का, वही आंसर जब हम उस क्वेश्चन को डिवीज़न मेथड से बनाते हैं तो आता है. तो एक तो ये जांच हो जाएगी, साथ ही साथ आपके दोनों मेथड का प्रैक्टिस हो जाएगा. सो होप दैट these things what we have discussed till now under this topic square and square root, it is very clear to all students, and hope that the given question you will be able to solve all the questions. Again we will meet taking this topic because this topic is long one, so many things are there to learn. So we will share in the next video. Till then, goodbye. You